Students, how are you? It's me Manoj Kumar Khare. We have already finished the NumPy. Now we have to start the Python Pandas. So the students who have computer at their home, they can install it by opening the command prompt cmd, and after that they just type pip install pandas. So pandas library will install in their computer and they can use it. Now what is Python Pandas? So Panda is the most popular Python library that is used for data analysis. We can analyze data in Pandas with series and data frame. So Python Pandas is used for the data analysis, and we have two things here for analysis the data. One is series and one is data frame. So all of you are familiar with the series because in class 11th we have already learned the series. Now here in class 12th again we are going to make a rapid revision of series so that we can realize what is series. After that we start about data frame. So for working in pandas we have to import which file? Import pandas as pd. The first one is already familiar, import numpy for nd arrays, and now one more file, import pandas as pd. As I told you, series. So let us start from the series. What is series? A series is a panda data structure that represents a one-dimension array. Series represents the one-dimension array defined in pandas that can use to store any data type: integer, string, float, Python, objects. Means all objects means nd array. So all type of data mostly it can store. That is the syntax for creating the series. pd.series. pd is the object of library, that is the you have written import pandas as pd. So in place of writing the pandas each time we are using pd. So here pd.series, in series remember one thing, sh capital. So pd.series, then data comma index comma d type and comma copy. These are the arguments that are, these are parameter and arguments that pass. Now see, first is data. So what is data? Takes various forms. Data may takes various forms like nd array, list, constant. Index must be unique and hashable. Hashable means just like you have familiar with the index in nd array 0, 1, 2, 3. Similarly here you can also give your own index. Okay. Now default, you know that if you are not giving any index, then default is np.arrange, means whatever range you have given. Suppose that 5 elements, then index is 0, 1, 2, 3, 4. Now d type is stand for data type. Now copy is used to copy the data. Default is false. Okay. Now a series can be created from dictionary, arrays, scalar value or constant value. So let's start. First, create an empty series. So suppose that you want to create a series without having any object. Import pandas as pd. S is equal to pd.series. Here we are not passing any argument, so that is empty series. So when you print it, then you will get the output as series. D type is equal to float. By default the D type is float and there is no any object, that is blank, empty series. Now create a series from nd array. nd array, recently you have finished this. So import numpy as np. Now data is equal to np.array. We are creating an array of 1, 2, 3, 4 element abcd. Now we are going to make the series. S is equal to pd.series data. Data means we are passing this nd array in place of data. Now print s. So you will get the output here in this manner. That your index 0, 1, 2, 3 and that is a, b, c, d, that is the value, and data type is your object because you are using series by using the nd array object. nd array is an object. Okay. Now here we didn't pass any index, so by default it assigns 0 to 3. Here you are not giving an index, so by default 0, 1, 2, 3 index automatic it will take. Now another example. Here data is equal to again the same, but here one more thing is when you are writing s is equal to pd.series data means the value for which you are going to create the series. Here you can give the index also. As you have seen, index is equal to
we have given index. You can give numeric index, you can also give ABCD whatever you want. You can also give labels also. So here index we have taken 100, 100, 101, 102, 103. Now if you print, then what you see? The result is in index. If you are not giving any index, अगर हम इंडेक्स नहीं देते हैं तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0, 1, 2, 3 ऑटोमेटिक आ जाता है। बट यहाँ पर सीरीज में ऑप्शन है इंडेक्स आप दे भी सकते हैं। अब आपने इंडेक्स ये दिया हुआ है, इंडेक्स क्या है 100, 101, 102, 103 और वैल्यूज जो पास की गई ABCD। क्लियर है। एक तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर ऐसे इंडेक्स हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक इंडेक्स दिया गया था, यहाँ पर देखिए हम अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स दे रहे हैं। जैसे इंडेक्स मैंने क्या दे दिया, ABCD और E दे दिया, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इंडेक्स दे दिया। अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, देखिए इंडेक्स आपका क्या आ रहा है, ABCDE और ये वैल्यू आपकी है 1 3 4 5। We can also create a series from dictionary. You know about the dictionary. So a dictionary can be passed as input, and if no index is specified in dictionary case, then the dictionary keys are taken in a sorted order to construct index. मतलब अगर हम डिक्शनरी से सीरीज बनाते हैं और डिक्शनरी से सीरीज बनाते समय हम इंडेक्स अलग से नहीं देते हैं, तो क्या होगा, जो डिक्शनरी के एलिमेंट की कीज होती हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में इंडेक्स बन जाती हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे ये डेटा है, ये डिक्शनरी आपकी हो गई, ये की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। की आपकी क्या है ABC और वैल्यू क्या है 0, 1 एंड 2। तो नाउ यू आर मेकिंग द सीरीज S=PD.series डेटा। अब आउटपुट अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, जब इसको प्रिंट कर रहे हैं सीरीज को, तो क्या मिल रहा है ABC, ये क्या इंडेक्स है, ABC क्या इंडेक्स है और ये आपकी वैल्यू है जो आपकी पास हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ्लोट होता है, तो जो भी वैल्यू आपकी होगी फ्लोट में कन्वर्ट करके इस तरीके से वो आपका दे देगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इंडेक्स ABC ऑटोमेटिक ले रहा है। वाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जो कीज होती हैं ABC आपकी डिक्शनरी की ऑटोमेटिक इंडेक्स में चले जाते हैं अगर हम कोई इंडेक्स नहीं लेते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे आपने डिक्शनरी लिया, डेटा A की वैल्यू क्या है, की क्या है, ABC और की है, वैल्यू क्या है 0, 1, 2 है। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट फ्लोट वैल्यू ली गई है। तो ये आपका की है ABC और वैल्यू क्या है 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं S=PD.series डेटा कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स मैंने मैनुअल दे दिया, इंडेक्स क्या दिया है BCDA, क्या दिया है BCDA। अब आउटपुट में हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, इंडेक्स है BCDA। लेकिन यहाँ पर देखिए की वैल्यू भी इसकी इंडेक्स की तरीके ही काम करती है, तो इस की वैल्यू पे जो एलिमेंट होगा वही आएगा। अब जैसे B पे क्या है 1.0 है, देखिए B पे क्या है 1 है, C पे क्या है 2 है और D पे क्या है, इंडेक्स मैंने भले यहाँ दे दिया है D, बट D पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि की वैल्यू के अकॉर्डिंग इंडेक्स इसमें काम करता है। तो यहाँ पे D की ही नहीं है तो वैल्यू आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो D के आगे क्या लिखा हुआ है 9 और A के आगे 0.0 यहाँ से ले लेता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसको ना देते, इंडेक्स यहाँ पे हम ना लिखते कुछ और सीधे लिखते PD.series ऑफ डेटा, तो क्या मिलता ABC और वैल्यू क्या मिलती 0, 1 एंड 2। बट वी हैव गिवन द इंडेक्स BCDA, सो वेयर दीज आर ट्रीटेड एज हेयर कीज, डिक्शनरी की कीज। अब जहाँ पे वैल्यू होगी वो दिखाएगा, जहाँ वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर 9 करके दिखाएगा। 9 का मतलब नो वैल्यू। नाउ क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू। If you want to create a series by a scalar or constant value and index you can provide, or if you want you can't provide. If you provide then what happens, suppose that here S=PD.series, ये आपका स्केलर वैल्यू है 5, एक वैल्यू दे दिया। इंडेक्स मैंने क्या करिए 0, 1, 2, 3, कितने इंडेक्स हैं 4 इंडेक्स हैं और वैल्यू क्या है केवल एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने प्रोवाइड की है। तो जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, हर एक इंडेक्स के लिए आपकी वही स्केलर वैल्यू कॉपी हो जाएगी। Now another interesting thing, just like your ND array, you can pass the index value and get the element at that particular index. तो यहाँ पर भी वो चीज़ हम कर सकते हैं, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज विथ पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर
इंपोर्ट पांडाज एट पी डी डॉट सीरीज, ये आपका डेटा हो गया। चाहे हम डेटा अलग से ले करके तब यहाँ पास कराएं या डायरेक्ट हम डेटा दे सकते हैं। डेटा क्या है 1 2 3 4 5, इंडेक्स मैंने लिया ABCDE। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम बात करें इसको हम प्रिंट कराएं तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। इंडेक्स आपका क्या है ABCD एंड E, और वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। ये आपका आउटपुट मिलता है अगर हम नॉर्मली इसको प्रिंट कराते हैं। कॉमन अगर हम प्रिंट कराते, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एस, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। क्लियर है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे वी आर राइटिंग प्रिंट एस ऑफ जीरो। तो एस ऑफ जीरो का मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, जैसे ये आपने दिया है ये तो ठीक ही है, ये आप अगर देते हो तो ये इंडेक्स आपको शो करेगा, लेकिन इंटरनली कंप्यूटर अपने अंदर जो इंडेक्स बनाता है वो यही मानता है। तो ये इंडेक्स आपका जो कंप्यूटर के अंदर बनता है ये आपका जीरो वाला ही चलता है, बाकी ये इंडेक्स का लेवल होता है। आप इसको भी यूज करके वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं और ओरिजिनल इंडेक्स को यूज करके भी वैल्यू आप स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा प्रिंट एस ऑफ जीरो, तो एस ऑफ जीरो का मतलब क्या है, एस ऑफ जीरो का मतलब क्या है 1। अब हम चाहे एस ऑफ जीरो लिखें, वी कैन राइट एस ऑफ जीरो, और वी कैन राइट एस ऑफ ए। तो चाहे हम लेवल का यूज करके एलिमेंट एक्सेस करें, चाहे आप इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट एक्सेस करें, दोनों ही सूरतों में आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और यहाँ देखिए एस ऑफ जीरो किया तो 1 मिला, और यहाँ पर प्रिंट एस ऑफ ए किया तब भी आपको क्या मिला 1 मिला। अब आ जाइए थोड़ा सा स्लाइसिंग की हम बात कर लें। अभी रिसेंटली आपने स्लाइसिंग फिनिश की है। प्रिंट एस ऑफ कॉलन 3, अब यहाँ पे 1 डायमेंशन है, तो कॉलन 3 का मतलब क्या है, स्टार्ट आपका कहाँ से करेगा 0 से, और कहाँ तक जाएगा 0 1 2। तो 0 1 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 1 2 का मतलब क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए वही आपको मिला ABC, और ये क्या मिला 1 2 3। अब यहाँ पे जैसे आप कहते हैं एस ऑफ -3 कॉलन, तो स्टार्ट आपका कहाँ से -3 इंडेक्स है, स्टॉप कहाँ है आखिरी तक जाएगा, तो -3 से आखिरी क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा। लास्ट वाले 3 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे CDE और 3 4 5। अगर CDE का इंडेक्स के तरीके आप देखना चाहते हैं तो ये इंडेक्स पोजीशन 2 है, ये इंडेक्स पोजीशन 3, इंडेक्स पोजीशन 4 है। ठीक है। अगर माइनस में देखना चाहते हैं तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो -3 से शुरू करके नीचे तक जाएगा तो आपको क्या एलिमेंट मिलेंगे 3 4 5। नाउ क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, ए लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशन हम क्रिएट कर रहे हैं। डेटा इजकल टू, ये आपका 2 डायमेंशन क्रिएट हुआ है। 2 डायमेंशन के मतलब आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इस आर्डर में है, ये ठीक है। सो यहाँ पर रो आपकी क्या होंगी, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। 0 रो में 2 एलिमेंट और 1 रो में 2 एलिमेंट। यहाँ आइए एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज डेटा हम करेंगे, प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 रो, मतलब इंडेक्स 0 पे ये 2 एलिमेंट, इंडेक्स 1 पे ये 2 एलिमेंट। क्लियर है। जैसे अभी ND अरेंज में आप करके देख ही चुके हैं। तो अगर हम इस तरह से हम पास कराएंगे, नेस्टेड लिस्ट पास कराएंगे, तो नेस्टेड लिस्ट पास कराने के बाद ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट पास हो रही है, हेलो, ना कि ND अरेंज पास हो रहा है, लिस्ट है ये, तो नेस्टेड लिस्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका 0 पे ही मिल गया, 1 पे ही मिल गया। ठीक है। हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। सपोज इट यू वांट टू क्रिएट अ सीरीज बाय स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए P इक्वल टू हेलो, ये स्ट्रिंग हो गई। A इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज P, यहाँ पर डेटा की जगह मैंने P को पास करा, इंडेक्स मैंने दे दिया 1 2 3। अब ये क्या एज ए होल ये एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, नॉर्मली एक सिंगल एलिमेंट है, स्ट्रिंग है ये। स्ट्रिंग को मैंने सीरीज में पास करा दिया तो पूरा का पूरा क्या मिलेगा, पूरा हेलो मिलेगा। लेकिन इंडेक्स कितने हैं 1 2 3। तो जैसे स्केलर और कांस्टेंट वाला आपने देखा था ना, यहाँ पर जैसे हम 5 को पास कराते हैं, इंडेक्स आपका ये होता है, जितने इंडेक्स हैं सब पे 5 5 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है,
3 इंडेक्स मैंने पास कराए 1 2 3, तो तीनों जगह क्या आ जाएगा हेलो हेलो हेलो,